बोलना पड़ा, I'm so sorry, जाना है. So thank you, but thank you for having me here. I'm enjoying. I'm so happy to be here. No problem. See, we have got almost 100 plus people joining in, Aj. Yeah, yeah. So, Sukada, can we go live now? Yeah, so meanwhile, Yes, we are going live. Just give me 2 minutes. So meanwhile, Manjushri, I was asking them to type in, what is their, they are from which school and also you can check in the chat box. Wow. So many BMC schools have also joined. मस्त, खूप छान, very nice. So once we are live, then we'll start officially for our last session of this season. Wow, lovely. Yeah. So good evening, everyone. I'm Aarti Saboor, and I welcome all of you in today's session of Ask the Expert. And today is a very special session because it's a last session of this second season. So before that, सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या, नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्या माझ्या सिंधी फ्रेंड्सना हॅपी न्यू इयर, पंजाबी फ्रेंड्स हॅपी न्यू इयर, बेंगॉली फ्रेंड्स हॅपी न्यू इयर, and all South Indian friends happy new year. So this is a new year, I know, but it's a very difficult new year with new challenges, old challenges which we have carried forward, like for the entire year, and it's just not getting over. So before we start, just do line meri taraf se, Manjushri, if you allow me. Chat. इरशाद, ओके. तो और एक नया साल, एक नई आशा, कोरोना मुक्त हो जग सारा, यही सभी के है अभिलाषा. चलो इस साल एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें दूसरों से थी आज हम किसी की उम्मीद बनते हैं. आओ जुड़े परिसर आशा के साथ, कीजिए किसी के सपने पूरे, बढ़ा के अपना हाथ. Beautiful. So, Love that. yeah, so we need each other, and this is what we believe in at Parisar Asha. तो उसके लिए हम लोग बहुत कुछ चीजें करते रहते हैं, नए नए इनिशिएटिव्स करते रहते हैं. तो आज ये आज दी एक्सपर्ट सीरीज का इनिशिएटिव हम लोग खत्म करके we will be starting a new initiative from 27th, and I would request all the teachers and all the principals to please join in, because ये है leadership के ऊपर. Because it is very important कि आज के pandemic में एक अच्छा leader ही दूसरों को हौसला दे सकता है. So that will be another story of that. So now I officially welcome Manjushri Patil, and she is going to talk about inclusion and diversity in our classrooms. So before that, she has, बहुत बड़ा उनका एक प्रोफाइल है. तो क्विकली आई विल जस्ट रीड इट आउट मंजुश्री पाटिल के बारे में. लेट मी टेल यू कि शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑलवेज स्माइलिंग. उनके पास देख के बहुत अच्छा लगता है. So Miss Manjushri Patil is the founder director of Atman Academy, a specialized instruction inclusive school for children with diverse learning needs that has been ranked among the top 10 schools nationally in the same category for 4 consecutive years. Amazing. A two-time TEDx speaker, a TEDx performer, and a recipient of ADA Anniversary Fellowship on Inclusive Education by the US State Department of Education of the University of Minnesota. She is also the director and co-content creator of a unique, only one of its kind course on inclusive education called the Child Course. This course runs in association with the ICI, University of Minnesota. With over 3 decades of experience in the field, Manjushri has been an advisor, consultant, and a chief trainer for a year-long statewide program on inclusive education with the government of Maharashtra, impacting more than 5 lakh teachers from 36 districts of Maharashtra. She is also the country director of
Samantha Education India, the first global education initiative on social emotional learning that has been endorsed by the UN Human Rights Office. So amazing work, Manjushri. Very well done, and I think a way to go. So I'm really honored and privileged to have you on our platform, Ask the Expert series. And this is a special session, as I said, because we are closing our second season with this session, touching upon the needs of us, differently abled children. So before we actually start the session, Manjushri, I would like to ask you कि ये जो आप बात करते हैं आपका जो स्कूल है, I mean, I would like to talk about instruction inclusive school. तो ये मतलब before we actually get into all these intricacies of inclusion and diversity, I would like to ask you कि मतलब ये क्यों आपने स्टार्ट किया, क्या आपको किसने इंस्पायर किया ये स्कूल चालू करने के लिए, क्या एक ऑब्जेक्टिव था और कहाँ पे हमारा लाइफ कई बार चेंज हो जाता है. तो ये इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड योर हिस्ट्री, that will be very inspiring for all our teachers who are over here. So welcome and over to you. Oh, Sukhada, can you please unmute her? Yeah. You asked me a question, मतलब मेरे बहुत दिल के करीब ऐसा सवाल आपने पूछा है आरती. So मैं हिंदी में बात करूँ ज़्यादा करके because सबको comfortably, मुझे मराठी तो हमारा बोलता यही, but it's a good idea that we stick to Hindi, common thing. English चलेगा ना? Okay. So actually I'll tell you what, जब ये स्कूल शुरू किया तब तक मैं ऑलमोस्ट 20 साल एक स्पेशल एजुकेटर थी मतलब आज भी हूँ. एजुकेशन लेने का कोई मकसद था आपको, मतलब आप? यस, ओके. स्पेशल एजुकेशन का मकसद, वो कहते हैं ना कि मकसद हमको उस टाइम नहीं पता चलता, आज पता चलता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं. तो स्पेशल एजुकेशन मेरा बाय चांस मैं उसमें घुसी. लिटरली मैं पहले साल डीएड करने के बाद जो मैंने पहले साल मेरा करियर शुरू किया 1990 में, आई वाज अ प्री स्कूल टीचर and I was enjoying it because I was a young girl, so I was really enjoying it and there was no thinking कि आगे जाके क्या करेंगे. अभी आज के दिन का ऐसा था कि I'm a preschool teacher and तब मैं एक क्लासिकल सिंगर भी थी, आज भी हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल. तो जो मेरी प्रिंसिपल, today we would like to hear from you. तो तब जाके तब जब मैं सिखा रही थी, एक साल मैंने सिखाया. जो मेरी प्रिंसिपल थी, वैसे उन दिनों हम ऐसे स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते थे, बुक्स को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, एग्जाम्स वर नॉट द की ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ दैट. वी वर मच अहेड ऑफ आवर टाइम्स. 1990 तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला, सैडली आज वो नहीं है, मेरी मेंटर थी वो, तो उन्होंने मुझे बोला, मंजुश्री आपके जनरली मैं अभी 1 साल से देख रही हूँ, और अ लिटिल गर्ल, प्री स्कूल में आप अच्छा करते हो, मुझे लगता है आपके आवाज़ को भी थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए, बिकॉज आई नो यू आर अ क्लासिकल सिंगर एंड शी यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट दैट. सो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप ना हम ये डिंकी क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसे हम मतलब डिंकी क्लास नाम था उसका, बट रिसोर्स रूम. तो रिसोर्स रूम है, आप रिसोर्स रूम में जो बच्चे आपको हम भेजेंगे, आप स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, SGI, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यू डू दैट. That will be good for your voice, and I think you have the right mindset also. I believe you have the skill set. I said okay, because for me she was God. She decided I have to go to Dinky class and do resource room work. I was happy, and I went in and I did that. And so from 1991 I did that and I loved it. I absolutely loved being in a resource room जहाँ पे 5 बच्चे स्टैंडर्ड 3 के आते थे, 8 बच्चे स्टैंडर्ड 5 के उसी पीरियड में. सो एक साथ मैं 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड ऐसे बच्चों को एक ही क्लास में सिखाती थी. रिसोर्स रूम, पुल आउट ग्रुप्स. और वो करते करते मुझे जब अच्छा लगने लगा, आई सेड नो, नाउ आई मस्ट ट्रेन माई सेल्फ. तो फिर जाके मैंने SNDT में अप्लाई किया एंड आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशल एजुकेशन. उन दिनों बहुत ही बड़ी चीज़ थी, बिकॉज सिर्फ 2500 को सिलेक्ट करते थे और 150 लोग अप्लाई करते थे. So I did that in 1994, 1995, I passed out from there. And from then on, I was officially and legitimately called a special educator. Till then, I was a resource room teacher, but then I became a special educator.
एंड दैट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन उसके बाद जब 97 में आई केम टू मुंबई, तो तब तक आई वाज इन दिस वेरी आइडियल यूटोपियन स्कूल, जहाँ पे आज जो हम इंटरनेशनल एजुकेशन कहते हैं, आज जो एनईपी कह रही है, वो चीज़ें हम उन दिनों कर रहे थे 1990 में. तो व्हेन आई केम फ्रॉम देयर टू मुंबई, थोड़ी रियलिटी मुझे बहुत हिट हुई और मैं बहुत अपसेट हुआ करती थी. सो आई वाज वर्किंग इन अ सेटअप विच वाज फैंटास्टिक. आई मीन, आप में से यहाँ पे जितने लोग हैं वो डेफिनेटली पहचानते हैं डॉक्टर आनंद नाडकर्णी को और आईपीएच को. वो मेरा मैका है. मैं कहती हूँ इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी. आई लर्न एवरीथिंग दैट आई नो टुडे इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल वर्क फ्रॉम द एंटायर टीम ओवर देयर. लवली पीपल. बट देन मेरा पिंड तो टीचर का था, तो बच्चे जो थेरेपी के लिए आते थे उनको मंजुश्री मौशी का थेरेपी का सेशन अच्छा लगता था, लेकिन दैट वाज नॉट आइडियल बिकॉज वेन दे गो बॅक टू देअर स्कूल्स, इट्स द केस ऑफ ये रे माझ्या मागल्या. परत आपलं सिच्युएशन तेच आहे. मुलांना मारलं जायचं, स्पेलिंग्स येत नाही म्हणून फटके दिले जायचे, दे यूज टू बी पुल्ड अप पुल्ड आउट अँड ऑल ऑफ दॅट. सो ये सब इफ यू कॅन एक्सपिरियन्स विथ मी की खूप हेल्पलेस वाटायला लागला. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हतबल आई स्टार्टेड फीलिंग कि अभी मैं एम नॉट डूइंग इनफ. बच्चा मेरे को थेरेपी में पसंद करता है इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज बच्चे की लाइफ बननी चाहिए आगे जाके. स्कूलों को जाती थी मैं तब, उन दिनों तारे जमीन पर आया नहीं था, तो उन दिनों लिटरली भीख मांगना पड़ता था कि भैया प्लीज इस बच्चे को कुछ सपोर्ट दे दो, ये बच्चा डिलिबरेटली नहीं कर रहा है. वो उसमें कहते हैं ना, तारे जमीन पे वो कहता है कि तुम्हारा रवैया ही खराब है. तो वो रवैया खराब वाली बात नहीं है, ये बच्चा जेन्युइनली उसको चैलेंजेस है, ये सब बताना पड़ता था. It went on mounting, but I didn't know what to do. I knew I would have liked to start a school, but I did not have anything with me. Then in 2008, I think it was, you know, when you say when something has to happen, वो होना होता है ना. 2008 साल में I was offered, मेरा एमएड हो गया, and I was offered a principalship in Thane for an international school. एंड आज जब मैं घूम के पीछे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ना अकल ना शक्ल, मैं कहाँ प्रिंसिपल बनने वाली थी, मुझे कुछ नहीं आता था. आई वॉज नॉट इन अ लीडरशिप प्लेस, बट दैट वॉज गॉड्स वे ऑफ एक्चुअली पुटिंग मी इन दैट एंड गिविंग मी अ बेसिक लर्निंग ऑफ बीइंग इन अ लीडरशिप रोल. एंड 2008 से लेके 2010 तक मैंने वो किया, बट दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी बिकॉज मेरा पिंड स्पेशल एजुकेशन में हमेशा था, और वो नंबर्स कितने हुए और कितने एडमिशन्स हुए उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं थी. दिन खत्म होते ही पहले फ़ोन आते हैं कि भैया कितने एडमिशन्स हुए. दैट्स नॉट व्हाई आई वांट टू रन अ स्कूल. आई वांट टू रन द स्कूल फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर मनी. सो आई 2010 आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर एंड देन देयर वाज अ बिग वैक्यूम. क्या करूँ? कहीं ना कहीं अंदर से तो आवाज़ कह रही थी कि स्कूल शुरू करो, लेकिन पैसा कहाँ पे था, किसके पास था? मिडिल क्लास पीपल, कहाँ से पैसा आएगा इतना? But well, my husband has been the biggest support. He said, just start working on it. Don't worry about the money. We'll think about it as we come to it. Start. So फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक, literally 9 months, I worked towards starting of the school and researching कि क्या कर सकते हैं. 10 अक्टूबर 2010 को 10 लोग 10 बजे मेरे इस 10वें माले के घर में मिले और मैंने सबको बताया कि भैया आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्कूल, और उसका नाम आत्मन अकेडमी है. एंड देन आज 10 साल हो गए. आई डोंट नो कैसे 10 साल हो गए. आज भी पैसा नहीं है, लेकिन डर नहीं लगा. नेवर फेल्ट स्केर्ड. No, wonderful, excellent. But what do you mean by instruction inclusive school? Yeah. So basically क्या है ना आरती, when we are looking at inclusion happening in a school, जब हम कहते हैं कि कोई भी क्लासरूम इंक्लूसिव है, so सबसे की चीज़ उस क्लास में होती क्या है? तो वो होती है ट्रांजैक्शन. सो एक तो हमारे स्कूल में जब बच्चे पेरेंट्स साथ में आते हैं, एडमिशन लेने आते हैं, तो हम बेसिकली हम पेरेंट्स को थोड़ा घबरा देते हैं. हम बोलते हैं देखिए हमारे स्कूल में ना टीचर्स नहीं है. तो लोग बोलते हैं कि हेलो एक्सक्यूज मी, मतलब हमारा कहना है कि हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है क्योंकि हम टीचिंग ही नहीं करते. मतलब ये कि हमारा फोकस टीचिंग पे नहीं है, हमारा फोकस लर्निंग पे है. सो वॉट एवर इज बीइंग डन इज टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर.
And when that is being done by a person, then she becomes a learning facilitator. So when we talk about an inclusive classroom, the first key component in that classroom is the learning facilitator. And she is the person who can drive. She is the queen, he is the king, whatever you want to call them. They are the makers or breakers of everything in a classroom. तो जब वो क्लास में जाते हैं और वो सिखाना शुरू करते हैं, उनका अप्रोच ये इंक्लूसिव होना कितना ज़रूरी है और वो कैसे होता है, ये हमारा स्कूल सबसे ज़्यादा फोकस करता है. सो हमारे टीचर्स are completely trained in the whole aspects of inquiry based learning, in the aspect of universal design for learning, because these are key components that make for a very good class transaction. So ऐसे करके हमारा inclusive है. Also ये बात है कि inclusion जब हम कहते हैं तो हर एक बच्चे को जैसे है वैसे accept करना, यही तो inclusion है. मैंने आपको जैसे आप हो जब एक्सेप्ट किया, तब मैं ट्रूली इंक्लूसिव हूँ. जब मैं आपको कुछ और बनाना चाहती हूँ तो फिर देन आई एम नॉट बीइंग इंक्लूसिव. So when I'm in a classroom with my children, when my teachers are in the classroom with the children, they are trying to make the child the best version of himself or herself. You are here, can you become better in your own? No comparison. Ever. That's one mantra of an inclusive classroom. अब भी पैनल डिस्कशन पे मैं वही बोल के आई हूँ कि भाई लोग, बहन लोग, प्लीज कंपेयर मत करो. हा ह्याच्यासारखा नाहीये, नसणारच आहे, कारण that's the way God has made him. They are never going to be the same. And thank God, because that makes for a lovely classroom. No, wonderful. I mean, it's the ideal environment for any child, definitely. But क्या होता है ना कि आज हमारे पास ये जो सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद है, they go to a normal school scenario जहाँ पे 50-60 बच्चे रहते हैं. मतलब हर एक बच्चे के पास देखना तो नामुमकिन है. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग इंक्लूजन की बात करते हैं, सबसे पहले ये वर्ड इंक्लूजन, ये क्या है, इंक्लूजन के अंडर क्या क्या आता है, अगर हमारे जो टीचर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप हमें बताएंगे एक सिंपल सी भाषा में तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है, एनईपी में पढ़ा है, इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है भाई, बट वो क्या कैसे करना है, और नॉर्मल सिनारियो में 50-60 बच्चों के साथ में एज अ टीचर, एज अ सिंगल टीचर जो कंट्रोल नहीं कर पाती क्लास को, उसको करिकुलम भी कंप्लीट करना है उसको. और अभी तो सिचुएशन इज वेरी बैड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैंडेमिक सिचुएशन एट ऑल. वी विल कम बैक टू दैट. पैंडेमिक सिचुएशन को बाद में आएंगे. बट बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि ये इंक्लूजन क्या है. ओके, आई वांट टू टेल इन अ क्लासरूम. मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी. आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ 142 लोग हैं. 140 हैं, आरती और मैं दोनों को मिला के 142 हो गए. मैं आप सबको ऑलरेडी एक बात बताना चाहती हूँ और जिसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि यू आर ऑलरेडी डूइंग इंक्लूजन. सो इंक्लूजन कोई अलग चिड़िया नहीं है. Please don't think it is that. You are already doing inclusion. Somewhere I feel अभी तो उल्टा होने लगा है कि लोगों को लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप कर रहे हो. डाइवर्सिटी मतलब क्या? डाइवर्सिटी मतलब वैविध्यता, विविधता. There are people, there are diversities in terms of the language, in terms of the cultures, in terms of the ethnicity, in terms of the way we dress up, in terms of our attitudes. हर चीज की डाइवर्सिटी है. आपके 50-60 बच्चों में एक बच्चा दूसरे के जैसे नहीं है. आप जब इन 50-60 बच्चों को लेके एक पूरा साल पढ़ा के उनको सक्सेसफुली अगले क्लास तक लेके जाते हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारा इंक्लूजन किया है. सो एक बात हमें याद रखनी है कि इंक्लूजन डज नॉट मीन एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज अलोन. ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे जहन में अभी ऐसे हो गया है कि इंक्लूजन मतलब जहाँ पे डिसेबिलिटी लोग एबिलिटी लोगों के साथ हैं मतलब इंक्लूजन. नहीं भाई, जब एक तेलुगु बच्चा एक मराठी बच्चे के साथ बैठा है वो भी तो इंक्लूजन ही है. जब एक अडॉप्टेड बच्चा एक बायोलॉजिकल बच्चे के साथ बैठा है वो भी तो इंक्लूजन है. जब एक बच्चा खुद को लड़का है लेकिन लड़की महसूस करता है और उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं जैसे है वैसे, वो भी तो इंक्लूजन है. सो आप सब इंक्लूजन ऑलरेडी कर रहे हो. टेंशन नॉट, प्लीज डोंट टेक टेंशन. नाउ द पॉइंट इज, आपको अगर लग रहा है कि हम पूरी तरह से ये नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा एक सेंटेंस से जुड़ी हूं आजकल. इंक्लूजन स्टार्ट्स विथ आई. करेक्ट?
इंक्लूजन का वर्ड किससे शुरू होता है? आई से। आई मतलब कौन? मैं। सो मैं इंक्लूसिव क्लासरूम में बर्ताव तो कर सकता हूं या कर सकती हूं। सो इट इज नॉट अबाउट टेक्निक्स और टूल्स और सम मेथडोलॉजीज। सबसे पहले इंक्लूजन मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, इंक्लूजन मतलब आपका वॉइस, इंक्लूजन मतलब आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, इंक्लूजन मतलब जहां पे आपको दिख रहा है कि कोई नहीं शामिल किया गया है बच्चा, तो उसको इंक्लूड करने के लिए एक दो क्षण स्पेशली निकाल देने। वहां पे ये नहीं कहना है कि मुझे करिकुलम कंप्लीट करना है। सो इफ यू चूज यू कैन बिकम इंक्लूसिव। इट्स जस्ट अ वे ऑफ एग्जिस्टिंग इन योर क्लासरूम। तो वो आप कीजिएगा। ऑलरेडी आपने 70-80% काम कर लिया है। कोई भी बच्चे को क्लास में अकेला महसूस ना होने देना इज बीइंग इंक्लूसिव। सो इंक्लूजन के आगे की स्टेप हम जो कहते हैं उसे कहते हैं बिलोंगिंगनेस। कैन यू मेक द चाइल्ड इन योर क्लासरूम फील दैट ही बिलोंग्स टू दिस ग्रुप? और अगर जो आप देख रहे हो कि कोई बच्चा किसी को, कोई ग्रुप ऑफ बच्चे किसी एक बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, तब हाँ, तब आपको करिकुलम बाजू रख के एक 5 मिनट उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर कॉल्ड टीचेबल मोमेंट्स। और तब जब आप करोगे, सो यू आर creating a generation of children who will understand inclusion. फिर there is no worries, then you don't have to worry कि आपने 2-3 टेक्निक्स कम इस्तेमाल किए, या बच्चे के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजीज नहीं इस्तेमाल किए, या तो बच्चे को आपको बच्चे की डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, वो तो नॉलेज है, वो तो आ भी जाएगा इंटरनेट से। दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सो डाइवर्सिटी मीन्स विविधता हमारे अराउंड जो हम देखते हैं उसे, एंड इंक्लूजन मीन्स accepting people as they are, respecting them for who they are, and not making them want to become something else than what they are. तू ह्याच्यासारखा का नाही आहेस? सिंपल, कारण मी तू तो नाही आहे, मी आहे, आणि माझी क्षमता जी आहे तेवढीच आहे. आय कॅन नॉट प्रॉबेबली डू मोर दॅन दॅट. विल यू एक्सेप्ट मी एज आई एम? दैट्स द क्वेश्चन। वंडरफुल, आपने बहुत खूबसूरती से इसको प्रेजेंट किया है। आई होप आज जो यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं और जो देखेंगे बाद में यूट्यूब के ऊपर, वो भी ये ध्यान में रखेंगे कि इंक्लूजन इज एक्सेप्टेंस और कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात में, शब्द में आपने उसको बहुत खूबी से बता दिया है। अभी बात करते हैं आपके स्कूल की, कि लेट्स टॉक अबाउट यू नो आवर स्पेशल किड्स। तो कौन कौन सी अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज को आप केटर करते हैं आपके स्कूल में? सो जब शुरू किया हमने स्कूल, तब मेरा सारा एक्सपीरियंस ज़्यादातर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अब उसको SLD कहा जाता है, उन दिनों LD ही कहा जाता था, बिकॉज जब मैंने ट्रेनिंग लिया, अभी 25-26 साल हो गए, तब सिर्फ LD एक टर्म हुआ करता था। अब डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेलिया एंड डिस्प्रैक्सिया, ये जो सारे हैं, ऐसे बच्चों के साथ मेरा ज़्यादातर काम हुआ करता था। IPH में भी आई वॉज अ थेरेपिस्ट एंड अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ काउंसलर फॉर दैट। सो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि आई स्टार्टेड फीलिंग हेल्पलेस, इनके लिए मुझे सबसे ज़्यादा फील होने लगा, बिकॉज आई रियलाइज, अरे ये कितने ब्राइट बच्चे हैं, कितने स्मार्ट हैं, लेकिन कोई उनको समझ नहीं रहा, इसीलिए उनका नुकसान हो रहा है। सो कैन आई डू समथिंग फॉर देम? तो स्टार्ट मैंने उससे की। आई स्टार्टेड आउट, सो आपने अगर मेरा लोगो देखा है, इट सेज आई हैव विल्ड इट, I'll build it, and a lot of people ask me BUILD is capital, तो LD मतलब क्या है? सर उन दिनों I had started out with saying that learning disabilities. आज आप मुझे अगर पूछोगे तो 10 साल के बाद उसमें मैंने चेंज ऐसे लाया है कि लर्निंग डाइवर्सिटीज। मैं डिसेबिलिटीज के आगे निकल गई हूँ, इन द सेंस कि आई डोंट सी एनीथिंग एज अ डिसएबिलिटी, बिकॉज अगेन इट्स इज ऑल्सो सो रेलिवेंट। आज आपको जब आप फ्रांस में जाओगे या तो आप चेकोस्लोवाकिया में जाओगे, तो चेक लोग बात करेंगे, तो आप चेक नहीं बात करते तो आप डिसेबल्ड ही हो गए ना। इट्स सो रिलेटिव। So disability is relative. Just because 100 million people can read, write and spell, and a couple of hundreds can't do it, they are becoming labeled as disabled. It's not really that,
But having said that, yes, having a name is not disabling. I'm not going to completely write away that. So coming back to my school, we started with learning disabilities primarily, and then, you know, when it's a school with a heart, then we open doors and we open doors and we open doors, and now we are looking at all kinds of diversities that we can handle. But I have to tell you this, Aarti, ये स्कूल शुरू की है हमने विद द सेवा भाव, और 10 साल हो गए हम सेवा करना चाहते हैं. हम इंश्योर करेंगे कि जो भी बच्चे हमारे पास आए उनको सेवा करने के लिए हम इक्विप्ड हैं. वी हैव द बैंडविड्थ फॉर इट. सो कुछ कुछ टाइप के बच्चे हैं विच वी आर नॉट एबल टू टेक बिकॉज वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ स्पेस and the right kind of infrastructure and the people, manpower, or you know, the human resource. So कुछ बस ऐसे बच्चे हैं. For example, I've been really wanting to take kids on the spectrum, but हमारा जो एक vertical space है, हम TMC के एक building में हैं, vertical space है, it's noisy, we have a lot of kids with ADD and ADHD. हमारे स्कूल में बहुत म्यूजिक चलता है because all the time हमारे स्कूल में bells नहीं हैं. So जब पीरियड्स बदलते हैं तो एक बेल के मतलब जब बेल की बजाय स्कूल में म्यूजिक बजता है, 1 मिनट जब म्यूजिक बजता है तो दैट इज अ ट्रांजिशन पीरियड, और 1 मिनट बाद म्यूजिक धीरे से फेड अवे हो जाता है, द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस. पूरे लंच ब्रेक में म्यूजिक बजता है. हमारे यहाँ ब्रेन ब्रेक नाम की चीज़ होती है जहाँ पे हम 10 मिनट म्यूजिक के ऊपर ढिंचैंग नाचते हैं, सब नाचते हैं. हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो वो भी नाचते हैं, बहुत मजे करते हैं हम. वी हैव अ लॉट ऑफ फन. सो थोड़ा ये जो एलिमेंट्स है ना, उसकी वजह से हम कुछ टाइप के बच्चे अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, बट वी आर केटरिंग टू अदरवाइज द एनी चाइल्ड हू कम्स टू अस. म्हणजे आमच्या दारात आलेल्या मुलांची आम्ही जर सेवा करू शकतो तर त्यांना आम्ही नक्की घेणार इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनीथिंग एल्स. वंडरफुल. बट मंजुश्री, कैन यू टेल मी कि ये पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसे है टुवर्ड्स स्कूल? बिकॉज जब भी हम लोग पेरेंट्स के साथ डील करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उनका बच्चे को थोड़ी सी अलग किस्म की जरूरत है करके. दे आर सेइंग ये घर पे तो ठीक है, सब एवरीथिंग इज फाइन. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस व्हाट दे कैन हेल्प दैट चाइल्ड टू मेक चेंजेस. तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि एंड योर स्कूल इज सपोज टू बी लाइक फॉर आई वोंट से नाउ डिफरेंटली एबल्ड और डिसेबल्ड, फॉर डाइवर्स चिल्ड्रन. तो ये डाइवर्सिटी लेकिन बहुत बार डाइजेस्ट नहीं हो पाती फॉर द पेरेंट्स. तो आपको कैसे अनुभव आए हैं फॉर पेरेंट्स? बिकॉज सी इसके लिए वो नॉर्मल स्कूल, मतलब जो रेगुलर स्कूल्स है, आई डोंट वांट टू से द वर्ड नॉर्मल स्कूल, द रेगुलर स्कूल, तो रेगुलर स्कूल्स में डालने की कोशिश करते हैं. बट बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड, टीचर्स को नहीं मालूम है उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे में, इवन द अदर चिल्ड्रन आर नॉट सेंसिटाइज्ड. yes. तो ये आप कैसे हैंडल करते हैं? और आप यहाँ पे जो टीचर्स है उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि उनके क्लास में भी बच्चा है? बिकॉज अंडर राइट टू एजुकेशन वी कैन नॉट से नो टू एनी चाइल्ड, and it's not right also because every child has that उसका एक हक है कि उसको एक सब बच्चों के साथ में एक साथ मिलके पढ़ाई करना, बिकॉज उसके बहुत सी अलग दूसरी एबिलिटीज भी उसके साथ में बढ़ती हैं, दूसरे बच्चे भी सेंसिटाइज होते हैं. देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी व्हिच गोज ऑन देन. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्कूल का अनुभव बताइए, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको आप बताइए कि वो पेरेंट्स को किस तरीके से हैंडल कर पाए, या फिर एज अ टीचर वो क्या कर पाएंगे कि ये बच्चों को भी वो इंक्लूसिव कंप्लीटली, मतलब वी कैन क्रिएट अ रियली ग्रेट सिस्टम. बिकॉज आप जैसे स्कूल्स बहुत कम है और हमारे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है. Exactly. Aarti, you have said a very right thing कि I am very realistic and I'm very honest about the fact that आत्मन पुरे पडणार नाहीये सगळ्यांसाठी. Atman is not going to be enough, and that is not why we've set up this school. Matlab, the intention now after 10 years as I look back is I understand why we started. I understand today that the more that I'm doing this, the more I'm actually making place for children to stay in their own schools. I don't want them to come to Atman actually. And I was just telling, I mean, I'm okay after 15-20 years, we say, okay, bye bye, ताला लगा दे आत्मन को, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा है, मेरी विक्ट्री है उस चीज में.
कि आत्मन जैसे स्कूल की जरूरत नहीं पड़ रही है आज बच्चों को, क्योंकि आप जैसे स्कूलों में टीचर्स आप सब बच्चों की केयर ले रहे हैं। पर जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आत्मन अकेडमी है। वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू गेट अ हैप्पी स्पेस। I'm going to answer your question in 2 3 ways, or rather 2 3 aspects of your question. One is you've talked to me about parents. Two, you asked me about teachers and how they can handle parents. And three, you asked me also about children and peers. So मैं तीनों चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले टीचर्स, मेरे डियर टीचर फ्रेंड जो यहाँ पे हैं, आप सबको मैं ये बताती हूँ कि आप बैठे हो डॉक्टर के सामने और आपके डॉक्टर आपको बताता है कि आपके बेटे को कैंसर हो गया है। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, नहीं करोगे। इट इज नॉट इजी। तो प्राइमा फेसी सबसे पहले ये बात हम याद रखें कि मैं भी माँ हूं, आप भी माँ हो, आपके और मेरे बच्चे को, आपके और मेरे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया है और उसकी वजह से आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे लाइफ में और लाइफस्टाइल में। ये सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे मैं नॉर्मल वर्ड यूज करूंगी, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेड ऑफ फ्लेश ब्लड एंड बोन एंड अ हार्ट विल नॉट एक्सेप्ट इट इजिली। सो सबसे पहले मैं आप सबको विनती करती हूँ कि लेट अस नॉट से कि क्या ये पेरेंट्स हैं, बताते लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सो देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? टू, वी हैव अ ब्युटिफुल फ्रेज इन मराठी, पोटात शिरून। पोटात शिरून आपल्याला काहीतरी त्यांना समजावावं लागतं. वी हॅव टू यूज अ काइंडर, जेंटलर अँड अ मोर empathetic approach. Empathetic approach means I know what you are going through wala approach. I know it is not easy. You can't tell them आपका बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? यू स्टार्ट गोइंग एट लॉगर हेड। जब आप फाइटिंग के टोन में निकल आते हो ना, फिर वो हो जाता है कि देम अगेंस्ट मी। ये स्कूल आप क्या समझते हो, आप क्या, हम देखते ना हमारे बच्चे को, हम जानते ना। So we are going to accept everything that the child's parent says. The child's parent will say, मैडम घर पे तो करता है। agreed, बरोबर है, घर पे वो करता होगा and I'm so glad because यहाँ पे भी ना वो करता है। so ये आपको हर एक बार टोन बदलना है। बच्चे के पेरेंट्स आपको स्कूल के बारे में, घर के बारे में बताएंगे और आप स्कूल के बारे में बताएंगे। अब इन दोनों का आपको एक मैरिज करना है कि स्कूल का भी बच्चा आपका बच्चा है, घर का भी बच्चा आपका बच्चा है। मतलब क्या? मतलब ये कि वो बच्चा वही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो आप जरूर यूज कीजिएगा। मैं आपको एक पूछती हूँ, इफ यू कैन गिव मी आंसर्स, गिव मी। 3 people हैव अ पीस ऑफ चॉक। ओके, उनके हाथ में पीस ऑफ चॉक है। तीनों ने हाथ में से चॉक छोड़ दिया। 3 लोग, उनके हाथ में चॉक है, तीनों ने अपने हाथ से चॉक छोड़ दिया। एक चौक ऊपर गया, एक चौक नीचे गया, एक चौक जहां पे था वहीं पे रह गया। ऐसन कैसन हुआ बताइए मुझे। If anybody can unmute themselves and tell me. Yeah, I'm not very good at reading chats fast, so how come this happened कि एक चौक पीस, हर एक के हाथ में अपना अपना चौक पीस था, एक चौक पीस जहां पे था वहीं पे रह गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। ऐसे कैसे हुआ? How come? Who can give me an answer? Any answers chat में? Anybody is giving me? बो खूप छान माहिती दिली, महत्वाची। एनीबडी कॅन गिव्ह मी, हे असं कसं काय झालं की 3 लोकांकडे चॉक होता, सोडून दिला आणि एक वरती गेला चॉकचा तुकडा, एक एका माणसाच्या हातातला चॉक वर गेला, एका बाईच्या हातातला चॉक खाली गेला, एका बाई माणसाच्या हातातला चॉक होता तिकडे राहिला। खडूचा पूर्ण आहे। एनी आयडिया? नहीं? That person must have thrown it, ना? हाँ, एक ने तो फेका ऊपर होगा, एक ने नीचे फेका होगा, हाँ, आणि एकाने ठेवलं असेल हातावरती। नाही तर खाली गेलं, एक होतं ते खाली गेलं, एक होतं ते वरती गेलं, एक होतं ते होतं तिकडे राहिलं। May I say, yeah, somebody wants to, Priya Joshi wants to say. Sukada, can you please unmute Priya Joshi? Yeah, Priya, would you like to tell us असं का झालं? Why did this happen?
आई थिंक मैम चौक है ना हाँ नीचे ही गया है, बट जो 3 बच्चे थे ना उन्होंने ऐसा सोचा है कि मेरा चौक ऊपर गया, मेरा चौक नीचे गया और मेरा चौक यहीं पे है। तो ये तीनों की मेंटालिटी अलग है, उनकी सोच अलग है। क्या बात है, ये आपकी सोच सुन के मैं बहुत खुश हो गई हूँ. दिस इज थैंक यू मैम। sweet answer. Thank you so much. थैंक यू But मैम। I will give you. But the chalk piece has actually gone up, gone down, and stayed where it is. So ये तो आपने creative angle दे दिया. Very nice answer. I loved your answer. But वो chalk piece actually ऊपर नीचे और जहाँ पे है वहाँ पे कैसे होगा? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. थैंक यू प्रिया फॉर ट्राइंग. मैं आपको बताती हूँ. चॉक पीस, तीनों के तीनों चॉक पीस एक ही डिब्बे में से लिए थे. या तो ऐसे कह सकते हैं चौक, एक ही चौक के 3 टुकड़े करके 3 जगह पे थे. पर ये जो लोग थे ना, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट था. एक चौक पीस जिसने छोड़ा, जिसका चौक पीस नीचे गया, वो धरती पे था. एक समुंदर में, डीप समुंदर में था, उसने छोड़ दिया तो वो चौक पीस ऊपर चला गया. और एक अंतरिक्ष में था, उसने छोड़ दिया तो चौक पीस जहां पे था वहीं पे रह गया. दिस इज अमेजिंग. बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है उसमें. But it's a fact. So that chalk piece is your child. ये आपको समझाना है पेरेंट्स को कि आई अग्री कि आप भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूं. पर आपका बच्चा आपको घर पे दिखता है, आप करेक्ट हो. मुझे आपका बच्चा स्कूल में दिखता है, मैं भी करेक्ट हूं. हम कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमारा लोकेशन डिफरेंट है ना. रॉन्ग नहीं है, डिफरेंट है. एनवायरनमेंट अलग. एनवायरनमेंट इज डिफरेंट. अगर एनवायरनमेंट अलग है तो बच्चे के रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस अलग ही होंगे. तो स्कूल में जैसे आपका बच्चा बर्ताव करेगा, उसके बारे में बोलने का हक मुझे ज्यादा बनता है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ. और ये बात मैं आपको एज अ मदर भी बताती हूँ. आई हैव नेवर एवर एवर बिहेव लाइक अ टीचर व्हेन माय चाइल्ड वाज इन स्कूल. अभी तो वो 10th पास हो गया. आई हैव ऑलवेज सेड कि यू नो बेस्ट, you decide. My child's school decides what's right thing for my child. I don't. Because मैं जो बच्चे को घर में देखती हूँ as a single child as compared to a child sitting in a class of 50, खूब फरक आहे. जमीन आसमान का फरक आहे. So when you are talking to parents, you are humbly telling them कि आप भी right हो, लेकिन मैं भी wrong नहीं हूँ. और हम दोनों उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, और हम दोनों उसकी भलाई ही चाहते हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो योर चाइल्ड डाउन. सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द अदर पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को ये भी समझाना चाहिए कि बीइंग डिफरेंट इज नॉट बैड. कारण आपल्याकडे ना, वी वॉन्ट एव्हरीबडी टू बी लाईक दॅट बिस्किट पॅकेट. एव्हरीबडी हॅज टू बी एक्झॅक्टली द सेम. सगळ्यांना गणित यायला पाहिजे, सगळ्यांना इंग्लिश यायला पाहिजे, सगळ्यांना भूगोल यायला पाहिजे, सगळं यायलाच पाहिजे आणि एकदम अव्वल मार्क्स. एव्हरीबडी हॅज टू गेट व्हेरी फॅन्टॅस्टिक मार्क्स. दॅट ain't happening in the real world, no? So we should be away from the whole system of comparing and saying, okay, this is what I have on hand. And so when parents, I've done a lot of work for counseling parents at IPH, and then sometimes when they're really unreasonable, no, I have to tell them, look, you may not like what I'm telling you, and even I'm not very happy to tell it to you, but it's a reality. Let's understand, आप डिनाई करके कैंसर चले जाने वाला तो नहीं है. आपका रिपोर्ट आ गया कोविड पॉजिटिव, नहीं ये रिपोर्ट ही गलत है, ऐसे कह के तो आपका कोविड चले जाने वाला नहीं है ना. ठीक है, आप मत एक्सेप्ट करो. चॉइस इज योर्स. मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका टाइप्स, तो मर्जी आपकी है. नहीं करना है एक्सेप्ट तो मत करो. मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना कि अगर आप इसको जल्दी से एक्सेप्ट करोगे और जल्दी से इस पे काम करोगे, तो बच्चे के लिए बहुत बहुत एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे और उसकी तरक्की बहुत जल्दी होगी. जितना आप डिनाई करोगे. एंड आरती, आई मस्ट टेल यू, बहुत बार ये हुआ भी है, मतलब असं झालं देखील आहे. यू आर आस्किंग मी अबाउट माय ओन एक्सपीरियंसेस. आई हैव हैड पेरेंट्स who've come and met me in the 3rd year, 4th year of my school, 2nd year of the school, you know, when in 2012, 13, and when we tell them that, you know, you can bring your child here because this is a happy place,
they don't want to move out of the regular schools. So child also says नहीं ये वो whatever, they don't come. We say okay, no problem, because हम किसी के पीछे जाके admissions नहीं करवाते, कभी भी नहीं करवाए हैं अब तक और आगे भी नहीं करेंगे. तो 3 साल बाद आते हैं, बैठते हैं और रोते हैं कि मैडम तब भी आपने बोला था, तब करते थे तो अच्छा था, बच्चे की लाइफ बच जाती. ऐसे कोई बात नहीं, रात गई बात गई, आज आए हो, चलो let's start a journey today. So parents are not going to accept. We have to accept that. You and I have to accept it as teachers. That parents को ये बात पचती नहीं है जल्दी. पर उनको अगर आप अच्छी पॉजिटिव साइड दिखाओ, ये बताओ कि अगर आप जल्दी इंटरवेंशन करोगे तो बच्चे का फायदा होगा, वो जरूर सुनते हैं. धीरे धीरे क्यों ना हो, वो जरूर सुनने लगते हैं. अभी आपकी बात टीचर्स हैं, तो टीचर्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको भी आपका अप्रोच बदलना है. ये नहीं कि हर एक बच्चे को आना ही चाहिए, और ये भी नहीं कि हर एक बच्चे को उतना ही अव्वल आना चाहिए. मे बी समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट इन द कैपेसिटी, दे कांट रीड एंड राइट एंड स्पेल. कैन आई एक्सेप्ट इट? कॅन वी मूव विथ देम ॲज दे आर? जसे आहेत तसे त्यांना घेऊन पुढे जायचं, rather than pushing them to become something that they can't become. So that is important. And like I told you before also, with children, हा सांगते तुम्हाला, ठाण्याला आहे शाळा माझी. समबडी इज आस्किंग आपली शाळा कुठे आहे. सो ठाण्यात पाठव तुम्हाला सगळे ॲड्रेस वी विल बी गिव्हिंग. तुम्हाला जरूर देईन. आणि देअरफॉर वेन वी कम टू द चिल्ड्रन, त्यांनाही कोचिंग करायला, एज्युकेट करायला आपलंच काम आहे. आणि मी तुम्हाला खरं सांगते, व्हेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर व्हेरी इन्क्लुझिव्ह. त्यांना समावेशन शिकवावं लागत नाही, ते असतातच. तुम्ही बघता ना लहान मुलांना, दे हॅव नो प्रॉब्लेम की शेमडं असो काही असो, आपले मित्र जसे आहेत तसे त्यांच्याबरोबर खेळतात, त्यांना काही पडलेली नसते. दे व्हेरी स्वीट. बट इट्स जस्ट दॅट आपण त्यांच्या मनात मोठं झाल्या झाल्या लाईन्स ड्रॉ करायला लागतो लोकांच्या मध्ये, आणि म्हणून मग इन्क्लुजनचं एक्सक्लुजन होतं. मग तुम्ही आणि मी आणि आपण आणि ते आणि हा सगळा प्रकार सुरू होतो. सो वी हॅव टू ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्गामध्ये मी इन्क्लुझिव्ह आहे का? ॲज अ टीचर मी सगळ्यांचा समावेश करते का? मी कोणाला काही बोलते का ज्याच्यामुळे त्यांना जास्त प्रेज, जास्त कौतुक केल्यासारखं, किसी किसी का ज़्यादा प्रेज किया जाता है और किसी किसी को कभी प्रेज ही नहीं किया जाता क्योंकि वो स्मार्ट आंसर्स नहीं देता. पर क्या हम प्रेज कर सकते हैं कि उसने ट्राई किया, उसके एफर्ट्स थे और उसने छोटी छोटी चीज़ें की, जैसे किताबें यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दी, ठीक ठाक रख दी. कैन वी डू दैट? दैट इज ऑल्सो इंक्लूजन. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आती कि ये सारी जो चीज़ें और इसके साथ और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर एज एन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिशनर सीखनी है, तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी मेक अवेलेबल आप सबके लिए. वी हैव अ कोर्स दैट वी आर रनिंग ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन. सो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये और इससे और कई ज़्यादा चीज़ें हम डीपली डिस्कस करते हैं इन आर 30 वीक्स कोर्स. ये बहुत इंटेंसिव और बहुत रोबस्ट कोर्स है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साथ हम ये कोर्स चलाते हैं. सो ये आपके लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप में से इतने अच्छे सवाल आप सब पूछ रहे हैं, तो आई नो आप बनना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू टू बिकम दैट एक्स्ट्रा बिट, दैट एक्स फैक्टर जो एक्स्ट्रा आपको खुद में देखना है. बिकॉज मैं तो 60,000 1,00,000 टीचर्स से ज़्यादा आई थिंक अब मैं ट्रेन कर चुकी हूँ. हर एक टीचर को मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी आंखों में, वो कहते हैं मैडम हम हेल्प करना चाहते हैं, हम कैसे हेल्प करें बताएं. सो दैट इज वाई 4 years ago we started this, and I will tell you more about it as we go along. So you can, since you are in the flow, you can all just brief more about it. तो इसके बारे में मैं आपको ये बात बताना ज़रूर चाहूँगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम कहते हैं ना, ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है, बिकॉज हमने BEd के टाइम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है. इंक्लूसिव होना भी हमारे लिए नेचुरल अब कम हो गया है, बिकॉज हम इतना एक्सक्लूजन कर रहे हैं, तुम्ही अमी ते, दैट्स बिकम लाइक अ थिंग. सो ये थोड़ा सा हमको रीफिट करना है हमारे अंदर. तो मैं इसको एक रेट्रोग्रेड फिटिंग कहती हूँ टीचर्स का. सो ये कोर्स हम चला रहे हैं पिछले 4 साल से ठाणा में, पर अभी ये ऑनलाइन चलता है. ये 30 हफ्तों का कोर्स है और 30 हफ्तों में से आपको एक हफ्ते में सिर्फ शनिवार के 3 घंटे देने हैं बस.
उतना ही आपका कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट यहीं पे है कि आप ये कोर्स में एनरोल करना चाहो, सो आप करें। And this course will give you all the skills, the attitude and the knowledge with regards to inclusive education. And inclusive education मतलब क्लासरूम में आप जो एक, जैसे आरती ने मुझे शुरू में पूछा कि 50-60 बच्चे हैं, how do I help? We will tell you how you can help, and we will tell you how you can help without burning yourself out, because मेरे लिए आप बहुत important हो, you are the most important person in that classroom. So we will equip you with every skill, every attitude, every knowledge, every baseline to be able to understand these learners and to be able to help them while you are in a class of 60, and also use approaches that can actually change your classroom to become more inclusive. थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये जो टीचर्स है आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपका नंबर भी शेयर करेंगे बाद में। सो कमिंग बैक टू इंक्लूजन, तो मंजुश्री, आर यू सैटिस्फाइड विद द पॉलिसीज व्हाट वी हैव एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव फॉर इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी? So Aarti, you know what, I will say that policy wise we are arrived, पर वो policies कैन आई से पेपर टाइगर्स हैं अभी भी थोड़े। पेपर टाइगर्स वहां पे जोर जोर से बातें हो रही है, पेपर अभी भी ग्राउंड रियलिटी और ग्रास रूट्स पे पॉलिसीज को कन्वर्जन उसका नहीं हुआ है, और उसके बहुत बहुत रीजंस हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस। many a times they're financial, many a times they're attitudinal, many a times they are just कशाला, that kind of चालू द्या, चालू दे ना, जाऊ दे ना, काय फरक पडतो, त्याला काय बोलायचं ते बोलू दे, जाऊ दे, गपचूप, नरोवा कुंजरोवा kind of a thing. कधी कधी that is also the case. So I am nobody to comment on that, but being the hopelessly positive person that I am, I can't be anything else. I will honestly tell you की आता रियालिटी खूप बदलते, खूप हळूहळू बदलते. आणि मी आताच आय वॉज जस्ट इन माय अर्लियर पैनल डिस्कशन आई वॉज शेयरिंग विद देम कि 2017 में जब मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ पूरा महाराष्ट्र घूमी हूँ, हर एक डिवीजन में 8 डिविजन्स हैं, 8 डिविजन्स में मैंने 4-4 दिन के 32 डेज फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए हैं। 450 मास्टर ट्रेनर्स को मैंने कोच किया है on becoming inclusive education practitioners and getting school the tools and skills. तो वो जब मैं कर रही थी तो मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ मैंने उनको क्या सिखाया, उससे ज्यादा मैं क्या सीखी हूँ ये मैं आपसे शेअर करना चाहूंगी। बहुत सीखी हूँ। अँड आरती, आय मस्ट टेल यू, आपल्या गव्हर्नमेंटच्या शाळांमध्ये ज्यांना करायचं आहे ना ते अक्षरशः जंग पिछाडून करतात। आणि मी इथे टीएमसी बीएमसीच्या टीचर्सना जेन्युइनली सलाम करते आणि मनापासून, संध्याकाळची वेळ, मी खोटं बोलत नाहीये, ते करणारे आहेत ना ते करतात, न करणाऱ्याला सबबी हजार, पण करणारे जे आहेत त्यांना काहीही लागत नाही, दे जस्ट गो फॉर इट अँड दे डू द राईट थिंग्स बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट, डुईंग व्हॉट इज राईट, नॉट व्हॉट इज इझी। असेही करणारे लोक मी बघितले आहेत इन माय 1 year वर्क विथ द गव्हर्नमेंट। आणि वर्ष झाल्यानंतर मी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी साहेबांना तेव्हा बोलले होते, सर माझं रिस्पेक्ट प्रचंड वाढली आहे गव्हर्नमेंटसाठी, गव्हर्नमेंटच्या कामासाठी। आपण ना खूप कधी कधी बोलतो की नाही होते, पण खरं सांगू होतंय, काम होतंय, ज्यांना करायचंय ते करतात, आणि दॅट्स द ट्रूथ इवन विथ प्रायव्हेट सेक्टर ना। न करणाऱ्यांना काय 100 गोष्टी कारण दाखवतात पुढे, किंवा काही कारण न दाखवतात, न करणारे लोक नाही करत, असं आहे ते। आणि ज्यांना करायचंय ते आमच्यासारखे, आम्ही आपल्या छोट्याशा कुठेतरी कोपऱ्यात खुपचित बसतो आणि आमचं छोटीशी शाळा चालवतो, काही मोठी नाहीये, फार लोकांना काही, वी आर नॉट इन्फ्लुएन्सिंग टू मेनी चिल्ड्रन, यथाशक्ती यथामती आम्ही आपलं करत असतो काहीतरी, जे काही जमतंय, जेवढं काही जमतंय करत राहतो। सो we need many more Atman and many more Manjushri. Yes, oh my God, no, there are a lot of them doing even better work than I am doing, आरती, खरंच सांगते मी, we are doing a very small thing, पण एवढं आहे की मनापासून करतो आणि गोड मानून घेतात पालक आमच्याकडे जे येतात ते, त्यांना आम्ही, मी जसं सुरुवातीला सांगतो ना की सेवाभावानी करतो आम्ही, आम्हाला या मुलांची जी आमच्याकडे येतात त्यांची सेवा करायची,
यथाशक्ती यथामती आम्ही करतो जेव्हा जसं जमतं. आम्ही चुकलो की आम्ही सांगतो आम्ही चुकतोय, थांबा आम्हाला शिकू द्या, असंही बोलतो आम्ही. आम्ही पण चुकतो. सो दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. दीज आर डायव्हर्सिटीज. तुम्ही स्वतःच्या पण चुका ऍक्सेप्ट करता म्हणजे मग तुम्ही दुसऱ्यांचा ऍक्सेप्ट करता. तुम्ही कधी कधी स्वतःच्या चुका ऍक्सेप्ट नाही करत, असं होतं. सो पॉलिसी वाईज खूप लोकांना खूप काही काही करणं शक्य आहे. ज्यांना शक्य आहे ते करतात, ज्यांना नाही शक्य आहे ते अजूनही करायला लागले नाहीयेत. पण आता मला असं वाटतं विथ द न्यू NEP ज्याच्यामध्ये इन्क्लुजन इज लाईक इट्स कम्प्लिटली सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला इन्क्लुजन दिसतंय. अख्ख्या चॅप्टर्समध्ये कुठल्याही NEPच्या चॅप्टरमध्ये तुम्ही स्किलवरती घ्या, तुम्ही हायर एज्युकेशन घ्या, इन्क्लुजन हा कॉन्सेप्ट सगळीकडे डोकावतो. आणि त्याच्यामुळे आता वाटतंय की अजून येईल, अजून जास्त येईल, इम्प्रूव्ह होईल. Right. मला मी खूप डीपली विचार बऱ्याचदा करते. मी जेव्हा US मध्ये 6 आठवडेच होते, फार जास्त नाही, पण 6 आठवड्यांनी सुद्धा खूप फरक पडला. मला असं वाटतं मुळात ना वेगळं असणं, बिईंग डिफरंट इज नॉट समथिंग दॅट इज लुक डाऊन अपॉन. म्हणजे आपल्याकडे तोच एक मोठा प्रॉब्लेम आहे की तुम्ही उंच असलात खूप तर अरे किती उंच आहे, बुटके असतात अरे किती बुटके, स्किन कलर खूप गोरे असते की अरे किती आहे, खूप काळे असतात अरे किती आहे, दात वाकडे असले काय पण People always. वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ हू वी आर. आणि गॉड नोज आपण काय अप्सरा मेनका किंवा व्हॉट इज द मेल इक्वॅलंट टू इट आय डोंट नो. पण वाय आर वी ट्राईंग टू बी अ परफेक्ट मदनाचा पुतळा काइंड ऑफ थिंग. हा जो एक आपल्याकडे कॉन्सेप्ट डोक्यात आहे की ऑफ परफेक्शन आणि बिईंग डिफरंट इज बॅड. म्हणून मग एवढ्या गोष्टी एवढे प्रॉब्लेम्स बाहेर येतात का, कारण आपल्याला सांगायचं नाहीये की वेगळे आहेत. म्हणजे मी हैदराबादमध्ये होते 4 वर्षापूर्वी ऑन अ फेलोशिप ऑन इट वॉज कॉल्ड कलिंगा फेलोशिप ऑन बेसिकली रिड्युसिंग सेक्शुअल हॅरसमेंट टुवर्ड्स विमेन, त्याच्यावरती थीम होती. आणि आमच्या ग्रुपचे जे मेंटर होते त्यांनी आम्हाला बसल्या बसल्या काय सांगावं, अमेरिकेचे होते ते गृहस्थ, पण 60च्या पुढचे होते. आम्हाला बसल्या बसल्या आम्ही काय तुमच्या आयुष्यात आत्ता घडतंय सांगा की व्हॉट इज टुडे, व्हॉट इज युअर माइंडसेट. तर ते म्हणले मी कालच इथे अमेरिकेवरनं लँड झालोय आणि 2 दिवसापूर्वी माझ्या मुलाने येऊन सांगितले की त्याला एका मुलाशी लग्न करायचंय. Okay. आणि ते म्हणले की मी आणि माझ्या मिसेस एकदम ठीक हॅपी होतो आणि आम्हाला आनंद झाला. सो वी सेड माय गॉड, हे किती नॉर्मल ऍक्सेप्ट करतायत ते, दे आर सो ओके विथ इट. आपण तर प्रॉब्ली अक्षरशः वरती ओझं घेऊन आलो असतो, असं गेलो पण नसतो प्रॉब्ली ट्रेनिंग करायला दुसऱ्या त्या कंट्रीमध्ये. सो यू कॅन इमॅजिन आपल्याकडे जे डिफरंट असणं म्हणजे बॅड आहे, हाच एक भाग जर आपला बदलला तर आपल्या शाळांमध्ये ना 4 चांद लागून जातील. आपल्या कंट्रीचाच हा एक ऍक्सेप्टन्सचा, आणि मी दोष देत नाहीये, पण आपल्या सगळ्यांनी ऍज अ कम्युनिटी बदलायला पाहिजे की ठीक आहे, ठीक आहे, तो मुलगा आहे त्याला लिपस्टिक लावायला आवडतं, हरकत नाही, ठीक आहे, त्याचा चॉईस आहे, कॅन आय रिस्पेक्ट इट. अरे फॉरगेट अबाउट दॅट लिपस्टिक वगैरे, इट्स अ लांबची गोष्ट. जर कोणी लेफ्टी असतील ना तर त्यांना वी ट्राय टू मेक देम राईट हँडनी लिहायला, बिकॉज यू कॅन बी डिफरंट. बाप रे, खरंच आहे ते. कारण आणि यु नो हाऊ इट यूज टू बी पूर्वी, म्हणजे आपण लहान होतो तेव्हा मुलांनी आर्ट्स करायचं नाही, मुलींनी केलं तर चालतं. पण मुलगा आहेस ना तू, मग आर्ट्स करतो. Cooking, so I mean, boys and cooking. But today, luckily, things are changing. Things are changing. ह्या Yes. गोष्टी बदलायला लागल्या, तर आता इथे पण बदल होईल, Yes. वर्गामध्ये पण बदल होईल, आणि त्याचा Yeah. Then, absolutely. So, can you give some tips for our teachers? How can they inculcate this sensitivity in our students? The other students towards these different, children. So Okay. that it is, they will also accept each other. राइट. सो हम जब बच्चों को देखते हैं इस क्लासरूम में, सो सबसे पहले जहाँ पे हम अलग के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम एक जैसे कहाँ पे है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पुरा दृष्टिकोन ही बदल जाता है ना. म्हणजे आपण वेगळे कसे आहोत ह्याच्यापेक्षा आपण सेम कसे आहोत ह्याच्याबद्दल जर आपण जास्त बोललो तर ऑलरेडी क्लासरूम इन्क्लुसिव्ह होतील. कारण
आईने आपला आवडता पदार्थ डब्यात दिला तर कोणाकोणाला आनंद होतो? सगळ्यांच्या हातवर जातील ना. मग तो मुलगा, त्याला लर्निंग डिसेबिलिटी असो का तो व्हीलचेअर वरती बसलेला असो, त्यालाही आनंद होतो. बाई आपल्याला काहीतरी वाईट बोलल्या तर कोणाला दुःख होतं? सगळ्यांना होतं. मग आपल्याला ज्या गोष्टी सिमिलर आहेत या मुलांमध्ये त्या बघायच्या आहेत. मग त्याच्यामधनं आपल्याला आरसे दाखवायचे आहेत एकमेकांना. ॲक्च्युअली आरसे, आय मीन, ॲज आय एम पार्ट ऑफ द कंट्री डायरेक्टर ऑफ अ प्रोग्राम ऑन सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर प्री स्कूलर्स. सो इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव्ह आणि आजच्या घडीला 16 देशांमध्ये तो प्रोग्राम चालू आहे आणि UN आणि वर्ल्ड बँकच्या बरोबर सपोर्टेड असा प्रोग्राम आहे आणि मी या प्रोग्रामची इंडियाची कंट्री डायरेक्टर आहे. तो त्याच्यामध्ये हमचे वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, हम बहुत सारे एक्टिविटीज उसमें करते हैं. उसमें एक्चुअली ये मिरर एक्टिविटी है. सो जब आप मिरर देखते हो तब आप एक दूसरे को देखते हो और आप देखते हो कि आईने में जो चेहरा दिखता है वो सिर्फ दिखने में अलग है बस, पर एक्चुअली जो अंदर है वो सेम है. Emotions are also same. Emotions are the same, feelings are the same, our way of expressing may be different. अगर मुझे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर मैं डेफ हूं तो मैं साइन लैंग्वेज से आपको एक्सप्रेस कर पाऊंगा. अगर मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हूं तो मैं शायद उतना आपको एक्सप्रेस ना कर पाऊं, मैं 2 शब्द में बता पाऊंगा आपको. पर मेरे भी अंदर इमोशंस हैं, मेरे भी अंदर फीलिंग्स हैं, मैं भी आपके जैसा हूं, हम सब एक ही हैं. अंदर से हम सब एक ही हैं. वो आई डोंट नो, आपने देखा मेरी वर्कशॉप्स में ये बहुत बार यूज करती हूँ. अभी मैं पीपीटी नहीं दिखा पाऊंगी इसलिए, लेकिन डायवर्सिटी एजुकेशन इज व्हाट. एक 2 अंडे फोड़ के रखे हैं, गावरान अंडा है और एक सफेद वाला अंडा है, दोनों खोल के रखे हैं, दिखने में अंदर से तो सेम ही है ना. बाहर से उनका छिलका अलग है. एक गावरान है वो ब्राउन कलर का है, एक सादा अपना इंग्लिश अंडा है वो सफेद कलर का है, लेकिन अंदर से तो हम सेम हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको जहाँ पे हमेशा हम कैसे अलग है ये जो भाषा होती है, उससे ज्यादा जितने बार आप हो सके हम कितने सिमिलर हैं, ये अगर आपका सुर रहेगा क्लासरूम में तो इंक्लूजन बहुत अच्छा होगा. Wonderful, wonderful. It's a very brilliant thought. Yeah. सुर बदल दीजिएगा. सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा. No, no, wonderful. And of course, आपको तो बहुत ऐसे अनुभव आए होंगे कि जहाँ पे it really touches your heart and that gives a satisfaction कि आप जो कर रहे हैं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो ऐसा कोई अनुभव अगर हमें बताएंगे? Oh, बहुत रहेंगे, but maybe like just one. We don't have time also now. It's almost 7 o'clock. yeah. I will share with you. हमारे स्कूल में एक बच्ची थी, शी जॉइंड अस एंड आते ही हम जब स्कूल शुरू होता है, स्कूल के नए साल में जून में हमारे स्कूल में हम एक हफ्ता लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऑ वीक. ऑ मतलब वो ऐसे जो ऑ होता है ना इंग्लिश में, वो ऑ, बट हमारे लिए वो AWW है, दोनों शब्दों का खेल है. उसमें हम कहते हैं आत्मन वेलकम वीक. और वो आत्मन वेलकम वीक में सिर्फ बॉन्डिंग होता है. टीचर्स बच्चों को पहचानते हैं, बच्चे टीचर्स को, बच्चे एक दूसरे को पहचानते हैं, बस वही करते हैं हम. गेम्स, एक्टिविटीज, डीप डायविंग, डिस्कशन्स, ये वो मजे करते हैं. यायचं, डबा खायचा, मजा करायची आणि घरी जायचं. दॅट इज दॅट 1 week. There's this child who came, who joined us in the 7th standard, and the first day, second day activities were done. On the third day, I still remember, Wednesday को शाम को उसकी मदर मेरे केबिन के बाहर, मतलब मेरे दरवाजे के वहाँ पे आके खड़ी रही, and she started crying. I got up and I held her hand. I said, क्या हुआ? Is your girl not happy? कुछ हुआ क्या? She couldn't talk. She was choked. And she just gave me one sentence. She said, मैडम आपने मेरी बेटी मेरे को वापस दे दी. एंड आई सेड, क्यों ऐसे कह रहे हो आप? सो कहती है, मैडम ये बच्ची इतनी टैलेंटेड पेंटर है, लेकिन उसके अभी के 2 स्कूलों के एक्सपीरियंस में उसने पेंट ब्रश हाथ में लेना बंद कर दिया था. कल शाम को वो स्कूल से वापस आई, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ना. ट्यूसडे को वो शाम को घर पे आई, उसने पहले जाके मुझे आके पूछा, मम्मी मेरा पैलेट कहाँ पे है, मेरे पेंट ब्रश कहाँ पे है. और रात को 10 बजे तक वो पेंटिंग कर रही थी. एंड एक्सेप्ट
exceptional painter. I mean, I have known I was going to tell you the story. I would have kept that booklet. हमारा एक booklet है जिसके back पे, जिसका front cover हमने जब 5 साल complete किए तो उसके front cover का एक painting है. आप उस painting को देखोगे, मतलब it is jaw dropping. It is scintillatingly beautiful. Or that my little girl drew when she came to the 9th standard. That was when we completed 5 years of the school. It was amazing. So ऐसे इतनी चीजें, और नॉट जस्ट बच्चों के, मेरे पास पेरेंट्स के साथ भी ये है कि मैं पेरेंट्स जब एडमिशन के लिए आते हैं मैं उनको बोलती हूँ देखिए ये स्कूल 50% आपके लिए है. तो वो सोचते हैं मतलब क्या, मतलब ये कि अभी आप टेंशन मत लो, बच्चा हमारे पास है. बिकॉज मेरा प्रामाणिक मत ये है कि जब स्कूल में आप बच्चे को डालते हो तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू एंश्योर दैट गुड एजुकेशन हैपन्स. आज के तारीख में जब आपका पेशेंट आईसीयू में जाता है तो पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है, उनको खिलाना पिलाना, उनका टॉयलेट, सब कुछ. इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैमिली. सेम वे जब बच्चा मेरे पास आता है तो मैं बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ. एंड आई टेल देम आपके सिवाय ये होने वाला नहीं है, आपकी पार्टनरशिप मुझे चाहिए, बट आई विल आस्क फॉर इट. मैं आपका सपोर्ट मांगूंगी. तब तक आप जाओ और आपका जो करना है करो. 1 साल बाद एक पेरेंट आके मुझे बोलती है मैडम मैं पूरी तरह मतलब छोड़ दिया था मैंने डांसिंग, जब से मेरा बेटा आपके यहाँ पे आया है तब मैंने डांस क्लास शुरू किए हैं और मैं इतनी खुश रहती हूँ. बराबर है ना, बिकॉज अ हैप्पी मदर इज अ हैप्पी फैमिली. So she says, I am happy, everybody in the house is happy because now my child is happy with you. So ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत बडी चीजें नाही आहे, लेकिन मेरे लिए म्हणजे सार्थक झालं. मला असं वाटतं जे काही आम्ही थोडंफार करतोय आणि मी त्याचं श्रेय एकटी घेत नाही, कारण माझ्या टीम शिवाय तर मी Team is excellent. Yes. झिरोच आहे. आय मीन नोबडी इज एनीवेयर केपेबल. तो मैं यहाँ के टीचर्स को बताना चाहूंगी कि इनकी जो प्रिंसिपल है शी हैज वन द ग्लोरिया इंटरनेशनल अवार्ड जो हम लोग बेस्ट एजुकेटर के लिए देते हैं. एंड या मंजुश्री, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स? अभी ये सारा जो ऑनलाइन हो गया है, तो हाउ आर यू कोपिंग एंड हाउ आर द किड्स कोपिंग ऑन दिस ऑनलाइन थिंग? Arti, I will tell this to you very quickly and very simply. You know, sometimes आपण एखाद्या गोष्टीचा बाऊ करतो and it is not all that much of a बाऊ. So the biggest learning happened for all of us. You know, we all had to really learn. खूप शिकावं लागलं आपल्याला ऑनलाईन. मुलं खूप रेझिलियंट असतात. मुलं पटकन attach होतात. They were very fast at picking it up and within a month or two, ma'am, not like that असं सांगायला लागतात आपल्याला. ती कार्टी जास्त चांगली शिकतात. They are far better. They are, like I keep saying, this generation, all these children born in the last 15 years are native to technology. They are born in a world of technology. तुम्हाला आणि मला आपल्याला रेट्रोग्रेड फिटिंग करावं लागलं, आपल्याला बाहेरनं ठिगळं लावावी लागली टेक्नॉलॉजीची. ह्या पोरांचा जन्मच टेक्नॉलॉजीमध्ये झालाय. सो दे आर सो गुड विथ इट. काही सांगावं लागलं नाही, काही शिकवावं लागलं नाही. मायक्रोसॉफ्ट टीम्स फक्त एंटर करण्याचा अवकाश की झालं, धाड 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 धाड. आता आय टेल यू वी आर फेसिंग बिगर प्रॉब्लेम्स. कारण कार्टी इतकी हुशार आहेत ना, दे आर डुईंग ऑल काइंड ऑफ नॉटी थिंग्स ऑन दॅट. त्यामुळे त्याला आम्हाला आता मायक्रोसॉफ्ट लोकांना कॉन्टॅक्ट करावा लागतो की हे कसं करतात ही पोरं, आम्हाला सांगा, कारण हे आम्हाला माहिती आहे आम्हाला अक्कल नाहीये एवढं टेक्नॉलॉजी समजायची. So we are actually now, after this term ends, there are 2-3 children who've done some big time kidas. कारण हुशारच आहेत नाही पोरं. But we like it. It's okay. We tell them नका करू वगैरे सांगायचा प्रयत्न करतो, आम्ही काउन्सिलिंग वगैरे करतो, पण नाही, त्यांच्यात ते ठासून भरलेलं आहे. सो वी ऍक्सेप्ट देम. तर तू शेर तर मी सवा शेर, तू शिवाजी तर मी जिजामाता, असं आम्ही आता आम्ही जिजाऊ होणार आहोत. आम्हाला शिकायला आहे या सगळ्या नॉटीपणाला आपल्याला कसं बात करायचं, तर शिकवू आम्ही आता. आय रिअली लाईक युअर स्पिरिट. कारण जेव्हा मुलं वर्गामध्ये नॉटीपणा करतात ना, तेव्हा टीचर्स इतके परेशान झालेले असतात, ते इतके हैराण झालेले असतात. बट आय लाईक द वे यू हॅव टेकन दॅट नॉटीपणा. बिकॉज त्याच्याशिवाय मजाच नाहीये. सरळ तुम्ही कधी 5th गिअर मध्ये गाडी चालवली आपण ह्याच्यावरती हायवेवरती, मज्जा नाहीये. ठीक आहे, सरळ रस्ता आहे, थोड्या वेळानंतर झोप यायला लागते. मजा कधी आहे? जेव्हा बकरीमध्ये येते, जेव्हा जेव्हा स्पीड ब्रेकर येतो, जेव्हा माणसं येतात,
I'm just joking and it's maybe not the right analogy, but I'm just saying की it's nice. थोडे किडे करतात पोरं. फक्त त्याच्याने एकमेकांचं नुकसान होऊ नये एवढी आम्ही दक्षता बाळगतो. We have to be very, very careful about that. And we take care of that. So we have zero tolerance for anybody who's going to do it. मैं हमेशा कहती हूँ, let's laugh together. Let's not laugh at each other. You know, let's laugh. Let's not do something to poke fun with each other. Yeah. So wonderful. So before we close this session, अगर आपको teachers के लिए कोई एक संदेश देना चाहेंगे, any advice to them and also to the parents? Okay, so many things that I would like to say, but probably one that comes top of my mind is that I think आता वेळ अशी आली आहे की we have to really start focusing on what we believe at Atman Academy. We call that pace learning and not race learning. एज्युकेशन हे रेस सारखं नको बघायला. इतर मुलं काय करतायत आणि पालकांना तर मी नेहमी सांगते, आय ऑलवेज से कि ये भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे वाला जो एक रवैया होता है हमारा, उसको थोड़ा निकाल बाहर करें प्लीज. प्लीज निकाल बाहर करें. कंपेयर ना करें बच्चों को. जब बच्चे जैसे हैं उनको जो कर पाए उसको बेस्ट करने का प्रयास करें, ना कि जो नहीं आता वही उसको करना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. मतलब मैं तो इनिशियली मैं जब आईपीएस में बच्चों को देखती थी तो मैं उसको कहती थी सुडो लर्निंग डिसेबिलिटीज. मतलब खरं खुरं लर्निंग डिसेबिलिटी नाहीये, पण एखाद्या मुलाला बळबळ त्याला जी गोष्ट आवडत नाही ते करायला लावणं जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला असं वाटतं आपल्याला की अरे याला डिसेबिलिटी आहे का, पण नाही ना आवडत. आता इफ आय टेल यू व्हेरी सिम्पली, यू आर इन द किचन, you like probably cooking Chinese, but you may not like cooking Thai food, and you may not like making rasam sambar. It's a choice. It's a choice. सगळ्यांनाच मेहंदी काढायला आवडायला पाहिजे असं नाहीये ना, जबरदस्ती नाहीये ना. मग can we accept the same in the classrooms, in our learning journeys, and let children bloom at their own pace, which may not be very fast. बट देयरफॉर डोंट कंपेयर. डोंट एवर कंपेयर कि वो कितना फास्ट जा रहा है तो तू क्यों नहीं जा रहा है. नहीं जा पा रहा हूँ माँ, मैं नहीं जा पाऊंगा. कैन आई बी एक्सेप्टेड एज आई एम. दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल. सो कंपेरिजन ड्रॉप कर दीजिएगा बस. Yeah, so thank you so much. So before we close, हम लोग हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे उनको ये भी बताना चाहेंगे, हम लोग इनका तो एड्रेस और उनका कांटेक्ट डिटेल हम लोग दे रहे हैं, लेकिन परिसर आशा एक टोल फ्री हेल्पलाइन रन करती है जिसको पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से हम लोग बुलाते हैं. पिछले 5 सालों से विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ कैपजेमिनी हम ये फ्री में सबके लिए ये सुविधा हमने उपलब्ध की है कि जहाँ पे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर्स भी है, वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. जो आपके बच्चों से रिलेटेड आपके इश्यूज आपको लगते हैं, राइट फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी से लेके अग्रेशन, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट है, और जो बच्चे आज के दौर से गुजर रहे हैं, नॉट ओनली बच्चे बट ऑल्सो एडल्ट्स. लाइक ड्यूरिंग कोविड टाइम्स तो हमने ये जो सुविधा है वो सबके लिए हमने ओपन की है, क्योंकि बहुत आज सब लोग ही एक ऐसे अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, पता नहीं कल क्या होगा. इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन एवरीवन्स लाइफ टुडे. इट्स अ लाइफ थ्रेट टू एवरीवन. तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है, स्ट्रेस हो जाता है. तो प्लीज फील फ्री. ये नंबर आपके पेरेंट्स में भी शेयर कर दीजिए. Our counseling service is open morning 9 o'clock से लेके रात को 9 o'clock तक है. सभी दिन उपलब्ध है, आप कभी भी कर सकते हैं. टोल फ्री नंबर है, अगर आप फोन से कॉल करेंगे तो आपके फोन का बैलेंस नहीं जाएगा, वो पैसा हम लोग भरेंगे. सो प्लीज इसका आप इस्तेमाल कीजिए. एंड नाउ आई विल ऑल्सो लाइक टू Sukhada, can you please share our certificate of gratitude? So thank you so much, Manjushri. And this is very, very, you can say very heartwarming session. And I'm sure यहाँ से बहुत कुछ learning आज सब लोगों ने किया है. And a real मायने में inclusion and diversity का जो मतलब आज हमें समझ में आया है. Thank you so much. And I'm sure हमारे जो teachers हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे. They will implement in their classrooms. So thank you so much. And you can share your details in the chat box so that अगर किसी को आपको contact करना अगर उन्हें चाहेंगे तो they can contact you directly. Yes, please feel free to contact me and get in touch with me.
Yeah. And anybody would like to talk to her directly now? अगर कोई किसी के questions है तो we are opening the forum. Sukada, you can give the rights for them to unmute themselves. You can unmute yourselves and also you can switch on your video so we can have face-to-face chat. Aarti ji, I have a question. Yeah, yes. Good evening, ma'am. Thanks a lot for giving such a beautiful, profound lecture. And I have two questions. One is, आपने बीच में बोला था ADD, I think so, and that is attention deficit syndrome. Yeah. And could it be corrected in children? Okay, let's understand. Let me just finish sending this atmanacademy.org. Okay, let us understand that attention deficit disorder or attention deficit disability that a child may have is something that is different from attention deficit hyperactivity. So hyperactivity is when the child is more motor driven. So उसके 3 stages होते हैं, you must be aware. One is called impulsivity, one is called hyperactivity. So basically what happens in these children is they are unable to attend to something because they do not have a filtration technique inside of them. They can't filter any stimuli. So अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ पे टीचर की आवाज आ रही है. I'm not able to filter all that. सब कुछ अंदर आ जाता है. Your question, does it go away? Now, attention deficit may require some intervention initially, but both attention deficit and hyperactivity disorder प्रोग्रेसिवली रिग्रेसिव. मतलब आपको इतने लेवल पे आपको एडल्ट्स नहीं दिखेंगे जिनमें अटेंशन डेफिसिट है, पर हो भी सकता है, ऐसे नहीं कि एब्सोल्युटली चला जाता है कंप्लीटली. जब बच्चे होते हैं तब हम उनको कहते हैं कि अगर जरूरी पड़ा तो थोड़ा सा मेडिकेशन का सपोर्ट, इट कुड बी इवन होम्योपैथी मेडिसिन, बट सपोर्ट लेना जरूरी है. बिकॉज हाइपर एक्टिविटी इज लाइक आई से, या आपने नल शुरू किया है, ये ग्लास यहाँ पे नीचे रखा है. अब ये ग्लास अगर मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे नल है, और ये ग्लास अगर हिल रहा है कंटिन्यूअसली, तो नल में से कितना कम पानी आएगा. लेकिन अगर यही ग्लास थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाएगा तो पानी ज्यादा कलेक्ट हो पाएगा. इसलिए जो बच्चे अटेंशन डेफिसिट होते हैं बचपन में, तो उसके साथ उनको लर्निंग चैलेंजेस आने लगते हैं, बिकॉज फोकस और अटेंशन उनको नहीं मिलता है. So it is not curable probably, but it does reduce with age. Attention deficit does reduce. Thank you very much, ma'am. There's one more question. Is there any syndrome jahan par, I have noticed, I am also a teacher, so students keep on doing repeatedly spelling mistakes despite of their very good English communication skills background. Is this a syndrome? Possibly. Absolutely. You are bullseye hitting on a challenge that a child might be facing called dyslexia. So what you need to do is you need to get the child to the nearest educational psychologist, get the child's IQ tested, get the child's educational testing done. You will बता के भी वही स्पेलिंग आप उसी बच्चे में 3-4 किस्म के स्पेलिंग्स देखेंगे आप उसी स्पेलिंग का, या तो वही स्पेलिंग इतने साल बता के भी उसको वही स्पेलिंग आती नहीं है. बट बाकी देखने जाओ तो बच्चा बड़ा स्मार्ट है, बड़ा वाइज है, वो मतलब बातें कर सकता है, इंटेलिजेंट है. तो ऐसे बच्चों को ही हम जनरली कहते हैं एट रिस्क विद डिसलेक्सिया है. टेस्ट करवाइए, बिकॉज ओनली देन यू कैन एक्चुअली से फॉर श्योर. लेकिन तब तक यू नो व्हाट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, RTI जिसे हम कहते हैं, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन. यू कीप गिविंग द चाइल्ड सपोर्ट, you keep giving the child techniques and tools to learn how to spell. That is a problem. If Aftab, you've asked me this question, I want to tell you what happens is, हमारे स्कूलों में we to learn spelling, and so that is something that we need to do for our children, like the one you have told. There's some disturbance. I can't hear you. Can you please repeat? You just can you I think everyone, can you please be on mute?
Can I request all of you to be, if there's somebody at the back end can help, just Yeah. Sukada, you can just make everyone mute, but then, just give us the access of talking. So, so I said you need to get these children, such a child, tested, and after testing, you will get a better analysis of where the child is having challenges. Let's understand जब ये बच्चा स्पेल नहीं कर पा रहा है बावजूद इसके कि आपने उसको रिपीटेडली अलग अलग किस्म से सिखाया है, तब इसका मतलब हो सकता है कि देर इज व्हाट वी कॉल डिसलेक्सिया, विच इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, विच इज द वायरिंग में प्रॉब्लम होता है बच्चों के ब्रेन में. बाकी दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उनके वायरिंग में इशू होता है, जिसकी वजह से वर्ड्स, स्पेलिंग्स, लेटर्स, सिंबल्स में उनका बहुत झोल होता है. That's a very simple way of putting it, but they really have challenges in that and they need support. और शायद मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि जैसे कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है तो आप उसको मार पीट के या गुस्सा करके या रेमेडिएशन दे के ग्रीन कलर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है. मेरे पास एक बच्चा था, वो कलर ब्लाइंड था, उसको ग्रीन कलर दिखता नहीं था. What do we do? Do we do remediation for that child? No, we accept the child कि ठीक है भैया तू ग्रीन नहीं देख सकता, वील बी केयरफुल. जब ग्रीन है तो उसको कहीं दूसरा कलर दिखता है, व्हेन वी आर टीचिंग माउंटेन्स एंड प्लेन्स, उसको बोलना पड़ता है बेटा ये ग्रीन है. अच्छा ओके ठीक है मैम, आई गॉट इट. ही इज एक्सेप्टेड हिज कलर ब्लाइंडनेस, वी हैव एक्सेप्टेड हिज कलर ब्लाइंडनेस एंड वी मूव ऑन. तो हट्टाला आपण पिटत नाही की उसको आना ही चाहिए ग्रीन कलर देखने को. सेम वे वी डोंट गेट आफ्टर अ चाइल्ड कि उसको आना ही चाहिए स्पेलिंग्स. नहीं आते भाई, क्या कर लोगे? ट्राई कर रहे हैं ना, ट्राई करने के बावजूद अगर नहीं आ पा रहा है मुझे स्पेलिंग, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा. बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड, इफ अ चाइल्ड कैन, द चाइल्ड विल. Right. 10 बार बोलने के बाद 12 टाइम वो कर. So I think the technology is really a boon to these children. Today we are also not using spellings; it just goes on auto type. Exactly. Very much. True. So simple. True. So True. why True. not? And that's something I've been propagating for 25 years. I've been saying, why should a child learn how to spell when there is spell check? 20-22 साल पहले जब हमने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया, तब से हम कह रहे हैं. But ma'am, I have read somewhere that those who have these disorders, they are very much, intelligent, or they are very much specialized in some other faculties. Yes. Is it true? Yes. Aftab, I think you are an amazing candidate, and I'm not selling it to you, but I think you should really come and join our course on inclusive education. You really have the perfect mindset to be coaching yourself to support such learners. You look so amazing. I mean, in your attitude, that if you actually give yourself all of this learning and the skill sets, you increase that, you will really be able to do so much good to so many children. Because that's right, you're right, these children are bright, normal, very bright, normal. Right. Thank you very much. Thank you. Ask you to see, हमने 10 साल कंप्लीट करने पे इस पूरे साल we did zenversations, मतलब zen conversations. We were zen at 10. हम काम और पीसफुल है इस साल. तो हमने zenversations किए, 10 किए सीरीज. हर महीने के 10 तारीख को हमने एक इंस्पायरिंग सेट ऑफ पीपल या एक व्यक्ति को इंटरव्यू किया. तो उसमें हमने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया. तौफीक कुरैशी को हमने किया, हमने अमोल गुप्ते को किया, अभी लास्ट वाला हमारा बमन ईरानी था, हमारा बमन ईरानी जी थे. तो पर एक हमने जो किया फरवरी में, उसमें हमारे 4 एक्स स्टूडेंट्स को हमने इंटरव्यू किया. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा. आपको पता लगेगा कि ये ब्राइट बच्चे जब हमारे पास आए तो उनके अंदर के फीलिंग्स क्या थे, और उसके बाद आज 10 साल बाद ये बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. somebody is a filmmaker, somebody is a chef, somebody is into music production, and one person has done his graduation from JB School of Arts, और वो अभी MBA कर रहा है. तो आप जरूर उसको देखिए हमारे YouTube चैनल पे. Zenversations नाम है. मैं तो मंजूश्री हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि ईश्वर परमात्मा अल्लाह ने जिसको भी बनाया है ना, वो उसका शाकार है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती. ये हमारा नजरिया है कि हम उसमें गलतियां ढूंढते रहते हैं. Wonderful. हेलो मैडम, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हैं हम? Oh, they are the sweetest set of people. Down syndrome बच्चे तो इतने सारे रहते हैं, उनको आपको मेनली adaptation करना पड़ता है.
I request everyone, please mute yourself. Yes, हाँ. thank you. डाउन सिंड्रोम बच्चों को जनरली ऐसे हो सकता है, नॉट ऑल ऑफ देम, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल बी वेरी रॉन्ग इफ आई से कि हर डाउन सिंड्रोम बच्चे के इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब कम रहता है, ऐसे नहीं होता है. उनके अंदर इतने हुनर होते हैं. सो डाउन्स के बच्चों के आपको हुनर ढूंढने हैं. हर एक डाउन के बच्चे में आपको इतने हुनर दिखेंगे. दे आर वेरी मिटिक्युलस इन कीपिंग देयर थिंग्स. खूप छान नीट नेटकं ठेवणार. दे विल बी व्हेरी गुड ॲट हेल्पिंग. दे विल बी व्हेरी गुड विथ बीइंग काइंड टू पीपल. दे विल बी गुड ॲट सर्विंग. सो जे चांगलं आहे ते आपल्याला उत्तम करायचं आहे डाउन्समध्ये. आणि फार अकॅडमिक बल्क वरती आपल्याला जोर नाही द्यायचा आहे, कारण प्रॉबेबली त्यांना तो झेपणार नाही. हे पण मी तुम्हाला सांगते, आज मी गव्हर्नमेंटच्या कमिटीवरती होते इतके वर्ष प्रोव्हिजन्स आणि कन्सेशन्ससाठी. आणि डाऊन सिंड्रोम आणि इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटीज असलेल्या मुलांसाठी 10वी मध्ये खूप सोयी सुविधा आहेत. त्यांच्याबद्दल फाइंड आउट करा. आपली डाऊन्सची मुलं डेफिनेटली 10वी करू शकतील, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण त्यांना विषयांची मुभा आहे. त्यांना सायन्स मॅथ्स एवढं घ्यावं लागत नाही. आता ओपन SSC बोर्ड पण सुरू होणार आहे, त्यामुळे 10वी करायचं असेल तर तेही त्यांना त्याच्या थ्रूही करता येईल. पण डाऊन्सच्या पालकांना देखील आपल्याला थोडं काउन्सिलिंग करावं लागतं. अँड वी नीड टू टेल देम की 10वी ही आयुष्याची इतकी कर्तव्यता नाही आहे. 10वी करणं छान आहे, पण 10वी केलंच पाहिजे, च विथ टिंब असं नाही. इट्स ओके इफ युअर चाइल्ड कॅन मॅनेज. त्याच्यातनं आपल्याला आता त्याला जे जमतं ते करण्यात त्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे. प्लस डाऊन्सची मुलं पुढे जाऊन तुम्हाला माहिती असेल सोल्स आर्क नावाची एक संस्था आहे, ते पण खूप चांगलं कार्य करतात. मुलांना वोकेशनल ट्रेनिंग देतात. तर त्याच्याबद्दल पण फाइंड आउट करा आणि त्यांना तिथेही दिशा दाखवा त्यांना. पण डाऊन सिंड्रोम मुलांना आहेत तसे ॲक्सेप्ट करा. दे आर व्हेरी व्हेरी सगळ्यांनाच करा. जसं आफ्ताबनी इतकं सुंदर वाक्य टाकलं की we are nobody to decide what is right and wrong in people. We are who we are as we are. And Allah ने हमको ऐसे बनाया है. We have to just be so happy and thankful. Okay, any more questions? Hello. Yeah, okay. Hello. Hello. Yes, go ahead. Jayanti speaking. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Madam, I want one small query. My query is the first thing is identifying such children at the primary level, which is not happening in the private schools. They are just coming, and when they come to the board exam level, when that time they come, the board has lots of formalities to be completed, which the parents are also not able to do, and the school is also not able to cope up. And the child is suffering because of that. So what is the suggestion? Who is the right person to identify these children at the primary level? Again, at the cost of sounding repetitive, I will definitely put the onus on the classroom teacher. Yes. The classroom teacher is the one who is living with that child day in and day out. So when you are seeing that a child is away, a disability, by the way, if you have seen, the word dis means away, it means asunder. So it's an ability that is a little away. So जैसे हम कहते हैं ना हमारा हटके है जरा, that हटके होना ये सबसे पहले क्लासरूम टीचर ऑब्जर्व करती है और माँ ऑब्जर्व करती है, पापा ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट? Exactly. तो इन तीनों ने मिलके ही जो स्टेप्स लेने हैं उससे ही आगे जाके बच्चों का फायदा होगा. You are very right when you said that at the end of the day it's when the elephants dance, it's the grass that suffers. इस सब में बेचारा बच्चा पिसा जाता है, बिकॉज उसका कोई टेस्टिंग करता ही नहीं है, तो उसको कोई समझता ही नहीं है, और उसको सिर्फ ताने दे के इसको ट्यूशन पे दे दो, वो ट्यूशन, ये ट्यूशन, इधर क्लास उधर क्लास, उसमें भेज के बच्चा बेचारा पिस रहा है. सो I believe your question is very, very, very well asked, and I think it is all about us as teachers, which again brings me to the fact that if you are trained to become an inclusive educator and you have the mindset, then you'll be able to actually find out that this behavior is a little different and diverse from another. And उसमें हम जो एक हमारा फॉर्मूला रहता है FID, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, वो सारी चीजें हम डिटेल्स में सिखाते हैं. तो दैट
I feel everybody is in need to learn now. Ata can't look back. I feel that I should do your course which is there, which will be helpful to the society. I would really. I'm in Dombili, Dombivli, and you're working in which school? Symbiosis Convent High School, Mumbra. Okay, great, very And nice. You have my number. I've shared it in the chat. I will Please just take it. feel free to connect. I would like to share one more thing. I had a learning disability child whom I had the opportunity to give private tuitions at the 10th standard level. Oh, He was Dr. Anand Nadkarni's patient who did IQ and all. And I gave him 10th standard, 12th standard, both from NIOS. All the exams he got through. And as per Dr. Nadkarni's suggestion, he went for Air Hostess Academy training. And today he's the manager in Air India. wow, That learning ability child. He's in Thane. wow. How? Actually, the parents were so cooperative. The child was studying in Saraswati and so many things, he was thrown out of the school. At that time, they came to me and they supported me very well. I used to take tuitions for 12 hours to 16 hours. But they used to cooperate with me because I used to learn the lessons for him. So that he used to just listen to me, keep on listening to me, and then he wrote the exam. You will not believe, at the examination center also, I went and made him sit in the examination hall and I came. His mother was standing down. My God. You know, I'm reminded of a research I had read long back that in every child's life there is one single charismatic adult. Yes. Especially the life of a child with learning disabilities. That Yes. one charismatic adult can completely change the course of that Yes. child. And that's Because, what yeah, Dr. Nadkarni had given that his line is this. So after completing 12th, the parents did that course and immediately he got appointed in Air India as a manager. Even today, I feel very proud of it, and that child is really a good child. wow, proud of you. Thank Yes, you. thank you. The world is a better Thank you. place by Yes. so contributions of people like you. Thank you so much. Thank you so much. Lovely. Thank you, Aarti madam. Thank you. Thank you. So I think on this note, let's close this session and let's hope we will meet in the next, our third season of Ask the Expert. We are taking a break for 2-3 months now because we are starting with many new initiatives. So we will be taking a break with this Ask the Expert series. And thank you so much, Manjushri. It was really wonderful session. Loved being here. I loved being here, and I loved the fact that everybody has been listening with such good attention. Thank you so much, all of you who are here, and all of you who have been here since the beginning. Thank you so much. God bless all of you and stay safe. Yeah, stay safe. It's really difficult time. So take care and take care of your near and dear ones. So good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Ma'am, can I leave? Yeah.